बड़ी पप्पू ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ನೆನಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? अच्छे भोजन करने के लिए क्यों कहा जाता है? तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಯ ರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ. ನೋಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಣಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ದಾಸವಾಳ. ಆಯ್ತು ನಿಧಾನ ಆಯ್ತು. ಜಯರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣಜಿ. ಜಯರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ. ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಜ್ಜಿ? ಏನ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿರಿ? ಹಳ್ಳಿ ರೊಟ್ಟಿ, ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಯ. ಅಬ್ಬಾ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಮಾನಸನ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾ. ನೋಡಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಊರು, ಇದು ಅಮ್ಮನ ಮನೆ. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೆಲಸ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಅವರು ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಓದಿದ ಸ್ಕೂಲ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬಂತು, ಏನು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾರ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾರ. ಅನ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಮಾತಾಡಿ. ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ನೋಡಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಿದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಮಮ್ಮ. ಇದು ಹಸುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ. ನಾವೆಂಗೆ ನೀರು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತೀವೋ ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂಗೆ ನೀರು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಏನೋ ತೋಟ ಇದೆ. ಏನ್ ತೋಟ ಅದು? ಕಾಯಿ ತೋಟ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಅದೇನ್ ತೋಟ? ಅಡಿಕೆಕಾಯಿ ತೋಟ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾ ನೋಡಿ ಅದೇ. ನೋಡಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಗದ್ದೆಗೆ. इधर भी आ गए ना. रूरल गेट. ये पौधा पता है? ये वायु बिडन. ये भी औषधि गिಡ ಅದು. ये वायु बिडन है. इसमें गुण भी है, अवगुण भी है. हाँ. वो बकरी वाइल्ड कॉस्मोस, डबल कलर कॉस्मोस है. ತಿರುಗು. ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ಗದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾನಸಂತ ಗದ್ದೆನ ನೀ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದ್ರಿ, ಇದಂತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಂತೂ ಫುಲ್ ಅದೇ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಬೀಜ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಾ, ಪಿಂಕ್ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಕಾಸ್ಮಸ್. ಸಾಂಬ್ರಾಣಿನ ಇದು? वो पेड़ नहीं है, ये इसका गोंद है, मतलब इसमें भी सामरानी है. ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ತಣ್ಣಗೆ ನೀರು ಕುಡಿದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು. ಅದೆಷ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ನಡಿಬೇಕಿತ್ತು. ಗ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. अभी जो फिश यहाँ होगा ना वो ड्राई होके मर गया पानी के बिना ना. ಸಮಯ ಈ ಫಿಶ್ ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ? ಬಾರ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ಓ, ಎಂಟವರೆಗೆ. ಇನ್ನು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾನಸಂದೆ ಅಕ್ಕಿ. ಮಾನಸಂದೆ ಅಕ್ಕಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮರ ನೋಡಿ. ಎಲ್ರು ಗದ್ದೆ ನಡ್ಕ ಬಂದು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕೂತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಡ ಆಯ್ತು. ಹಂಗೆ ಜೋರ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಪಾಪ, ಒಂದ್ ಪ್ರಾಣಿ ಏನಕ್ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಕೇಳ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕಮ್ಮ? ನೀವೊಂದ್ ಜೀವನ ತೆಗಿಯಲ್ವಾ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನೀವ್ ತೆಗಿಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಜೀವ ಇರಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನತ್ರ ಕೊಡೋದವ? ग्रेडेशन इज डिफरेंट. ಅದಕ್ಕೂ ಜೀವ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ. किल वन प्लांट एंड टू है ये व्रीहि है, भोजन है. इसमें जो भी जीव होता है वो डोरमेंट स्लीप अवस्था में होता है, उसको दर्द नहीं होता है. डू नो? मतलब जो मनुष्यों के लिए जो सस्य का वर्णन है, ये अनाज का जो धान गेहूं वगैरह खाना, सब्जी, तो जीव तो इसमें भी है, पर इसमें जीव सुप्त अवस्था में है, सोए हुए अवस्था में. इसलिए जब हम उनको प्रोसेसिंग करते, काटते छाटते, उनको दर्द नहीं होता है. जबकि वहाँ लिविंग स्टेज में है वो, वहाँ वो दर्द महसूस करते. इसमें दर्द नहीं होता उनको. अच्छे भोजन करने के लिए क्यों कहा जाता है सात्विक भोजन करने के लिए? जैसे कोई जीव मरा, जैसे हम उसकी मतलब जैसे उसको हमने स्मशान में लेके जला दिए, कुछ भी किए, तो अग्नि के साथ जैसे वो जा करके वायु में मिल गया, तो वायु से वो जा करके मेघ में मिलता है, बादल में मिलता है. फिर बादल में वो बारिश हो करके वो धरती पे आता है. धरती में आने के बाद फिर वो सस्य होकर के उगता है, धान गेहूं और सब ये. उस सस्य को जब कोई ग्रहण करता है, वो उसके शरीर में फिर वो वीर्य बनता है. फिर स्त्री शरीर में जाकर के वो छोटा शरीर अंदर जाकर के ग्रहण करता है, फिर वो पैदा होता है. तो इसलिए जो प्रोसेस है, जो भी आते हैं ऐसे करके अन्न के माध्यम से शरीर में जाके बनते हैं, फिर संसार में आते हैं. इसीलिए कहा गया हमेशा शुद्ध अन्न लो, क्योंकि ज्यादा चांसेस है जो अन्न जितना शुद्ध होगा उसमें उतना संस्कारी जीव हो सकता है. हाँ, अगर सात्विक अन्न आप लेंगे तो प्रोसेस ही यही है, पैदा होने की प्रोसेस. अन्नात भवंती भूतानि, इसलिए कहा गया अन्न से जगत की उत्पत्ति है. क्योंकि जीव आता है अन्न के रूप में ही पैदा होता है. पहले वृष्टि से आता है,
पर्जन्य वृष्टि से आकर के वो फिर धरती में गिरता है, फिर ये इन्हीं वृक्षों के माध्यम से ये पौधा सस्य की इसमें आता है, फिर इसमें वो पुरुष के गर्भ में जाता है, वीर्य बनता है, फिर स्त्री के गर्भ में जाकर के वो छोटा सा भ्रूण रूप लेता है, फिर पैदा होता है, फिर दुनिया में आता है। इसलिए आहार शुद्धि होना, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, इसलिए अगर आहार शुद्धि होगा तो सात्विक, इसीलिए सात्विक भोजन का ज्यादा विधान है शास्त्र में। तो समाज भी सात्विक उत्पत्ति होगा। तभी होगी। ये तामस आहार ग्रहण करते रहेंगे तो राक्षसी पैदा होंगे, जीव फिर आएंगे, जीव भी इसी ग्रेड का आएंगे। इसीलिए आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धात् ध्रुवा स्मृति। और जैसे अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी तो आपकी स्मृति जो है वो अटल हो जाएगा। स्मृति का मतलब क्या है? इतिहास भूगोल याद नहीं करना। स्मृति का मतलब हर परिस्थिति में आप में जागृति बना रहे, मतलब आप गलत नहीं करेंगे। जब स्मृति आपकी बना रहेगा शास्त्र की कि इस कर्म का ये फल है, तो जब भी लोभ लालच होगा तब भी आप उस कर्म को अटल रहेंगे। हाँ, स्मृति आपकी अटल है। अगर स्मृति भ्रंशात, अगर स्मृति नाश हो गई, बुद्धि नाश, फिर बुद्धि नाश होगा। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होते ही फिर विनाश हो जाता है। बुद्धि नाश होते फिर विवेक भी नष्ट हो जाता है ना, अपना मन मर्जी जो भी कर लेगा। अगर स्मृति ठीक रहे तो व्यक्ति जागृत रहता है, कर्म कर्म को समझ और के स्मृति हम शास्त्र को भी कहते हैं, गीता वगैरह जो है ना, तो इसलिए ध्रुवा स्मृति। जब सत्व शुद्धि हो जाएगी अंतःकरण, तो शास्त्र आपके अंदर लिखित हो जाएगा, मतलब जो शास्त्र वचन है वो आपके अंदर प्रिंट हो जाएगा, फिर वो आपके अंदर स्थिर हो जाएगा। फिर हमारा कर्म में भी वही, फिर आप गलत कर्म कर नहीं सकते आसानी से। कर्म द्वारा फिर वो प्रकट होगा, बिल्कुल, जैसे महापुरुषों के जीवन में हम देखते हैं। ये है विधान। समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्। जी ने कहा लिखा था ना, ये जो रुद्राष्टक की जो प्रसंग है भूषण जी की ये जीवन से संबंधित है। अच्छा अच्छा, मतलब कथा है काकभूषण जी जब गरुड़ जी को जब मोह हो गया, ये मतलब तो मोह नाश करने के लिए भोलेनाथ जी ने, मतलब वो जो सर्प में बंधे गए ना, राम जी रामायण से जो संबंधित है ना, तो जब उनको मोह नाश हो गया कि ये कैसे ईश्वर हो सकते हैं, जो नागपाश में बंध गए हैं, तो ईश्वर कैसे हो सकते हैं, तो इसलिए शंका पैदा हो गई। फिर वो गए देवी देवताओं के पास, होते होते वो शिव जी के पास पहुंचे, फिर शिव जी ने उनको काकभूषण जी के पास भेजा कि बिना सत्संग विवेक न होई, कि बिना सत्संग की जो है और खग जाने खग की भाषा, इसलिए पक्षी की बात मतलब पंछी की बात पंछी जितने बढ़िया समझेगा दूसरे नहीं समझ सकते। तो काकभूषण जी के पास जाकर के बताए, तो काकभूषण जी एक के बाद एक प्रसंग उन्होंने सुनाया उनको रामायण की। होते होते उन्होंने कहा, गरुड़ जी मेरे को भी ऐसे भ्रम हुआ था, ये जो भ्रम अभी आपको हो रहा है मेरे को भी हुआ था। तो फिर उन्होंने अपना पिछले जन्म की जो प्रसंग उन्होंने स्मरण करके कहा कि ऐसे है कि किसी समय जो है मतलब मैं कहीं पे जैसे मनुष्य रूप में पैदा हुआ, मैं उज्जैन जा कर के कहते जब वहाँ मैं रहा तो वहाँ मैं शिव जी की अनुष्ठान करता था। तो गुरु जी के निर्देश से वो शिव मंदिर में साधना करते थे, पर उनको जो है थोड़ा द्वेष था वैष्णव संप्रदाय में विष्णु भगवान के प्रति।
वो शिव जी को ही सर्वोपरि मानते थे। तो एक बार गुरु जी जैसे मंदिर में प्रवेश किए, ये बैठ के जप कर रहे थे, तो गुरु को देख करके ये आसन छोड़ के उठे नहीं उनकी सम्मान में। तो गुरु जी तो ब्रह्मज्ञानी थे, तत्व समदर्शी थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर शिव जी को ये सहन नहीं हुआ। फिर आकाशवाणी हुई कि रे मूर्ख, तू अजगर जैसे बैठा रहा, गुरु आने के बाद भी उठा नहीं, जा तू अजगर बन जा, सैकड़ों जन्म तक तू अजगर रहेगा। पर गुरु जी से फिर सहन नहीं हुआ। गुरु जी ने कहा, ऐसे है प्रभु जी, ये तो नासमझ है। उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए फिर उन्होंने ये रुद्राष्टक जो है गाए। रुद्राष्टकम इदम प्रोक्तम विप्रेण हरतोषय, ब्राह्मण देवता जो है उन्होंने गाए। तो इससे फिर शिव जी प्रसन्न हो गए। पर उन्होंने कहा, वत्स ऐसे है, चलो जो मैंने उसको सांप दिया हूँ, इतना जन्म तक उसको इस शरीर में तो जाना पड़ेगा, वो सांप बनेगा, अजगर बनेगा। पर ऐसे ही कि हर शरीर में उसको ज्ञान रहेगा, अपना विवेक भूलेगा नहीं, उसको हर समय विवेक वैराग्य ज्ञान बना रहेगा हर शरीर में। और चलो ये भी आशीर्वाद देता हूँ कि ये जितने भी उसको शरीर मिलेगा जल्दी जल्दी छूटेगा, उसको होश भी रहेगा। तो देखते देखते उन्होंने हजारों जन्म उन्होंने निकाल दिए, तो पैदा होते ही मर जाओ, मरते थोड़े थोड़े ये करके समय में। और उनको ज्ञान बना रहा। जैसे जड़ भरत जी जैसे मान लीजिए हिरण शरीर में भी थे, तब भी उनको ज्ञान था। तो ऐसे ही उन्होंने फिर क्रम से फिर वो आकर के जैसे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, फिर वही हरि कथा सुनने के लिए इधर उधर वो घूमते रहे। इसी प्रसंग से वो लोमस ऋषि जी के पास पहुंचे। और लोमस ऋषि जी से जैसे वो सुन रहे थे, तो रामायण वर्णन करते करते बीच बीच में वो निर्गुण ब्रह्म में आ जाते थे अपनी सहज दशा में। उससे फिर इनको अच्छा नहीं लगता था, ये सगुण राम की वर्णन सुनना चाहते थे। तो बार बार वो तर्क वितर्क करने लगे गुरु जी से। गुरु जी को अच्छा नहीं लगा, कहते ध्यान से तुम्हें सुनना चाहिए, तर्क क्यों कर रहे हो। जब बार बार तर्क किए, फिर उन्होंने गुरु जी ने उनको साफ दे दिया। तो उसका वर्णन भी तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं, अगर चंदन को भी बहुत ज्यादा रगड़ोगे उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाएगा। शीतल ज्यादा किसी को छेड़ना नहीं चाहिए। तो शांत है। कहते उसके बाद कहते जाओ तुम कौवा जैसे कहाँ कर रहे हो, जाओ तुम काक बन जाओ। फिर उनका कौवा शरीर हो गया। और उनको जो पहले वरदान मिला था, किसी भी शरीर में उनका ज्ञान लुप्त नहीं हुआ। उन्होंने गुरु जी को जाके प्रणाम किया। फिर इनकी दशा देख के फिर दया आ गई लोमस जी को। फिर उन्होंने उनको पूर्ण रूप से उन्होंने रामायण जी की पूरी लीला उन्होंने श्रवण कराई वहाँ पे। तो उससे फिर ये आत्मज्ञानी भी हो गए और उनको उन्होंने वरदान भी दिया, 20 कल्प या 30 कल्प तक तुम मतलब अजर अमर रहोगे, चिरंजीवी बने रहोगे जो है ना, चिरंजीवी का भी। और हर समय आपका ज्ञान बना रहेगा। किसी प्रसंग का ऐसे आता है इसमें, ये इसमें तो नहीं है ये प्रसंग, योग वासिष्ठ में है। जैसे गुरु वशिष्ठ जी जैसे गए काकभूषण जी के दर्शन करने के लिए, तो काकभूषण जी जो है सुमेरु पर्वत में रहते थे। तो उन्होंने उठ करके प्रणाम किया, पाद्य अर्घ्य दिए। फिर कहते गुरुवर वशिष्ठ आपका स्वागत है काकभूषण के आश्रम में। और कहते ये आपका 8वां जन्म है, मैं आपका इससे पहले 7 जन्म देखा हूँ। और ये विधि का नियत था कि 8वां जन्म में हमारा संभाषण हम दोनों की भेंट होगा, आप दर्शन देने के लिए आएंगे। ये आपके 8वां जन्म काकभूषण कहते हैं ना। तो शरीर भी वही रखा ना, ज्ञान की बात बदल भी सकते थे। शरीर भी वही रहे। उनको पूछा गया, जब वशिष्ठ जी पूछने लगे कि आपने इतने बड़े बड़े प्रलय कैसे कैसे विचित्र चीज आपने देखा है, आप तो दीर्घजीवी है। कहते हैं हाँ, कहते मैं ऐसे ऐसे सृष्टि देखा हूँ जिसमें सूरज नहीं होते थे, अंधेरा ही अंधेरा रहता था। ऐसे सृष्टि भी देखा हूँ जिसमें 10-10 सूर्य होते थे। ऐसे सृष्टि भी देखा हूँ जहाँ सिर्फ पेड़ पौधा होते थे, कोई जीव जंतु नहीं थे। तो तरह तरह की मैंने सृष्टि देखा हूँ, हर प्रकार की, हरि अनंता, हरि कथा अनंत, विचित्र विचित्र सृष्टि मैंने देखा। और हर सृष्टि में जब प्रलय होता था, कहते जैसे कोई कृतज्ञ व्यक्ति मतलब दुख दर्द परेशानी के समय अपने मित्र को छोड़ देता है, ऐसे ही जब ये प्रलय शुरू हो जाता था, पृथ्वी तत्व जैसे
जल तत्वों में जब चारों तरफ मतलब कहते हैं प्रलय का वर्णन है ना, कि जब भयंकर बारिश होता है लगातार महीना तक चारों तरफ जलमग्न हो जाता है, फिर पृथ्वी तत्व जो मिट्टी है वो जल में घुल जाता है। इसके बाद कई कहते हैं सैकड़ों सूर्य जो है इकट्ठा ये करते हैं, फिर वो जल को शोषण करके फिर उसको वायु रूप में होता है, फिर वायु आकाश तत्वों में विलीन हो जाता है, आकाश फिर मन तत्वों में विलीन हो जाता है। कहते हैं इसी प्रकार स्थिति में जब ये जगत सूक्ष्म में प्रवेश करना है, उस समय मैं अपने शरीर को सूक्ष्म करके कहते योग बल से मैं समाधिस्थ हो जाता हूँ। जब फिर ब्रह्मा जी का अगली सृष्टि रचित होता है, फिर मैं प्रकट हो जाता हूँ, फिर आकर के सुमेरु पर्वत में बैठ जाता हूँ, फिर कथा सुनाता राम कथा सुनाते हैं। ये रुद्राष्टक है, मतलब शिव जी का इतना वर्णन और किसी स्तोत्र में नहीं है। हाँ, उसका जो एक दो चीज मैं आपको कहता हूँ उससे समझ में आ जाएगा। ये पूरा जो शिव जी बैठे हुए हैं उनका ही वर्णन है ये। रुद्राष्टक है ना। हाँ, नमामि समीसानम निर्वाण रूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। तो कह रहे हैं आपकी ना, मतलब सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के इसका है ना, पूर्ण रूप से कैसे उनका कुंडल हिल रहा है ना। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। वेद का स्वरूप भी वही है। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम निर्गुण से वो सगुण में आ रहे हैं ना। न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परेवा नराणाम। बहुत सुंदर कह दिया। न यावत उमानाथ, उमानाथ की पादार बिंदम, जब तक उनकी पैर में शरण नहीं लेगा। भजन्ति ह लोके परेवा नराणाम, चाहे इस लोक हो चाहे परलोक में कहीं भी अगर हो, जब तक उनका भजन नहीं करेगा, न तावत सुखम शांति संतापनाशम, तब तक सुख भी नहीं है, शांति भी नहीं है, और जो भी दुख दर्द है संताप उससे उसका भी नाश। न तावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद सर्वभूतादिवासम। इसके बाद समर्पण है, इसके बाद समर्पण है। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, कहते मैं योग जप पूजा कुछ भी नहीं जानता हूँ प्रभु जी। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यम्। मैं हर समय आपका भी नहीं बना रहता हूँ। जरा जन्म दुःखौघतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्न मामी से शंभो। कहते जरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है इससे आप ही बचा सकते हैं प्रभु जी, मैं आपकी शरण में हूँ। तुषाराद्रिसंकाश गौरम गभीरम, तो कैसे गौरम है? जैसे तुषार जैसे, बर्फ जैसे, और गभीरम मतलब गंभीर स्वभाव है। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। हाँ, तो जो है कोटि प्रभा जो है शरीर की कांति इतना है। हाँ, स्फुरन मौली कल्लोलिनी चारु गंगा, यहाँ से लसत भाल बालेंदु कंठे भुजंगा, यहाँ बालचंद्र और कंठ में जो है भुजंग जो है सांप जो है। हाँ, मतलब शिव जी बेटे हैं, कैसे बेटे उनका वर्णन है पूरा ये। हाँ, तो कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, प्रसन्न होकर के बैठे हैं, प्रसन्न वदन है।
मंडल हिल रहा है। प्रचंडम प्रकृष्टम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। कोटि भानु प्रकाश से भरे हुए हैं। त्रयशूल। हाँ, इसको हमें प्रसंग था, इसको त्रयशूल, ये प्रसंग है। हाँ, तो कहते हैं ये सुंदर चीज है। त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणि। तो त्रिशूल जो है भगवान पकड़े हैं। त्रयशूल, त्रयशूल निर्मूलनम, तो तीनों शूल माने दुख, तीनों दुख को वो दूर करते हैं, इसलिए त्रिशूल पकड़े हैं। तीनों शूल जो है, तीनों शूल जीवन में हमारा क्या है, तीनों दुख को त्रिशूल से भगवान दूर करते हैं। तो तीनों दुख शास्त्र में कहा गया है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। ये दुख 3 प्रकार की है। आध्यात्मिक मतलब जो दुख अपने अंदर अध्यात्म खुद के अंदर जो पैदा होता है वो आध्यात्मिक दुख है। तो आध्यात्मिक दुख भी 2 प्रकार की है, शारीरिक और मानसिक। जैसे बात पित्त कफ की जब डिसबैलेंस होता है, फिर आपकी बुखार जोर से लेकर के जो भी पेट दर्द, ये जो भी शारीरिक बीमारियां हैं, ये सब शारीरिक दुख है। और मानसिक दुख क्या है, लोभ मोह काम क्रोध राग द्वेष, ये जितना है, तो ये जो है ये आध्यात्मिक दुख है, जो खुद के अंदर प्रकट होता है। मतलब खुद जब शरीर बीमार होता है और जब मन विकार में होता है, तो ये जो है ये आध्यात्मिक दुख है। आधि भौतिक दुख क्या, पंचभूत से बाहर से जो हमें दुख मिलता है, वो तो है ही। आप चल रहे थे, कुत्ता ने काट दिया, पशु पक्षी से, किसी ने कहीं जाते पहाड़ से पत्थर गिर गया आपके ऊपर, तो क्या है वो, अतिवृष्टि, हाँ। तो इसीलिए जो है ये हो गया आध्यात्मिक। तो आदि भौतिक पंचभूत से आप जा रहे थे, किसी ने आपको गाली दे दिया अकारण, आप परेशान हो गए, तो ये आदि भौतिक है। आदि दैविक क्या है, जब दैव दुर्विपाक होता है, कहीं अकाल पड़ गया, कभी बारिश नहीं है, इफेक्ट होता है। हाँ, कहीं अकाल पड़ गया, कहीं अतिवृष्टि हो गया, कहीं जैसे ये सुनामी आ गया, कहीं भूकंप आ गया, तो ये जो तीनों दुख से जो दुख है, ये तीनों दुख से ये जीव जल रहा है। तो ये तीनों दुख को दूर करने वाले जो है ना, वो त्रिशूल है। और देह का हम परिभाषा भी संस्कृत में ऐसे करते हैं, देह दह्यते त्रितापेन इति देह। जो ये 3 ताप से, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, तीनों ताप से, तीनों अग्नि से जो सतत रूप से जल रहा है, उसको देह कहते हैं। तो शरीर का मतलब क्या है, शरीयते नश्यते इति शरीरम, जो हर पल नाश को प्राप्त हो रहा है, उसका नाम शरीर है। तो शरीर को ठीक नहीं किया जा सकता है, जो हर समय ये तीनों दुख से जो है जल ही रहा है, वो देह है। दह्यते दह्यते त्रितापेन इति देह। इसलिए तीनों दुख से उद्धार जो है सिर्फ भगवत शरण से ही हो सकता है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा कहता हूं, संसार में अगर कमी है, सत्संग की ही कमी है। सत्संग मतलब कथा नहीं है, सत्संग मतलब कथा नहीं है। जब विवेक वैराग्य उत्पन्न हो, उस समय जो शंका है उसका समाधान होना, वो सत्संग है, खाली कथा सुनना नहीं है वो। मतलब प्रसंगಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು। हाँ, नहीं तो खाली कथा में ना, ಹೋಗಿ ಸತ್ಸಂಗ ಕೂತ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ क्योंकि ಆಗಿರಲ್ಲ। आप देखिए, अगत्य इद्दाग ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ, आप कितने भी धन कमा लीजिए, कितने भी बड़े पद में जाइए, कुछ भी कर लीजिए, तृप्ति कहीं भी नहीं है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या, तो सिर्फ एक ज्ञान ही है जिसके बाद व्यक्ति ठहर जाता है, फुल स्टॉप होता है। स्वामी रामतीर्थ का वर्णन है, जब वो अमेरिका गए थे ना, कम समय में शरीर छोड़ दिया उन्होंने, 33 एज में। तो मैथमेटिक्स में प्रोफेसर थे वो, लाहौर ओरिएंटल लॉन्गमैन कॉलेज में। तो वो जैसे गए तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी उनकी भक्त हो गए थे। हाँ, तो एक दिन ऐसे बैठे हैं अमेरिकन राष्ट्रपति, तो उन्होंने पूछा, स्वामी जी आई हैव वन डाउट। कहते एक शंका है, क्योंकि आप ये अपने नाम के साथ लिखते थे एम्पेरर राम, राम बादशाह। कहते आप किस किस्म की बादशाह है, आपके पास एक लंगोटी और एक कमंडल छोड़ के कुछ भी नहीं है, पैसे वो छूते नहीं थे। हाँ, तो कहते आप किस किस्म की, कहते मैं तभी बादशाह हूँ
क्योंकि जिन लोगों को तुम बादशाह कह रहे हो, अमीर कह रहे हो, उन जैसे गरीब ढूंढना मुश्किल है। दे आर रनिंग एंड रनिंग, दौड़ रहे हैं, इसका मतलब पेट भरा नहीं। जिसका पेट भरेगा वो सो जाएगा, हाँ, वो दौड़ेगा ही नहीं। दौड़ रहा है मतलब भूखा है, तो भूखा है मतलब अभी वो अमीर नहीं है। अमीर अगर होगा तो स्टफ हो जाएगा। कहते मीरा जैसे, कबीर जैसे, नानक जैसे ऐसे अमीर मिलना मुश्किल है। और जिनको तुम अमीर कह रहे हो ऐसे गरीब मिलना भी मुश्किल है। तभी उन्होंने उदाहरण दिए। कहते कबीर जी लिख रहे हैं कि घर द्वार छुड़ाया वहीं छोड़ के बैठे, जिधर घर द्वार छुड़ाया वहीं छोड़ के बैठे, जिधर मुंह मोड़ाया वहीं मोड़ के बैठे, जिधर मुंह कर दिया वहीं बैठे, जो साल उड़ाया वहीं ओढ़ के बैठे, जो उड़ा दिया कपड़ा उसी को ओढ़ के बैठे, जो गुदड़ी उड़ाई उसी में खुश है, पूरा है वो मर्द जो हर हाल में खुश है। एक डायग्नोज करके एक बड़े संत हो गए जी, हाँ वहाँ ग्रीक में हो गए ना, हाँ। तो एक बार उनसे मिलने के लिए ये सिकंदर गया, हाँ। तो वो क्या करते थे, जैसे ये बड़ा पेड़ है ना, ऐसे इसका खोखला था, उसमें रहते थे वो उनका मकान था, हाँ उसी में रहते थे वो। तो सिकंदर दुनिया जीतने के बाद वहां गया, तो जाके सभी ने बता दिए ये सम्राट सिकंदर है। सिकंदर ने भी प्रणाम किया, कहता मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं बादशाह सिकंदर हूँ। तो उन्होंने थोड़ा उसकी तरफ देखा, कहते तू इतना ही सेवा कर, थोड़ा सामने से हट जा, वो सूरज किरण तू रोक मत, वो जो सूरज किरण इधर आ रहा है ना उसको रोक मत, उतना सेवा कर, तू मेरे सामने से हट जा थोड़ा। जो ऑलरेडी कृपा हो रही तो उसको ही रोक के खड़ा हुआ है, तू वहीं से हट जा, बाकी कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, बाकी सब ठीक चल रहा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहते बिना सत्संग विवेक नहीं होता है। और इसका जो हमारे जो विद्वानों ने इसका बड़ा सुंदर अर्थ किया है। कहते सत्संग मतलब खाली शास्त्र का संग नहीं है, जिस कारण से भी आपको विवेक उत्पन्न हुआ है वो सत्संग है। ये लंकिनी की सब प्रसंग में आता है ना। हाँ, तो जिस कारण से भी अगर बहुत धन हो गया, धन देख के विवेक जग गया कि आज है कल नहीं रहेगा, कितने दिन साथ है, तो वो धन आपके लिए सत्संग है। अगर शरीर में बीमारी आ गई, उससे बैराग आ गया, तो वो सत्संग है। तो जिस निमित्त से भी कहते बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग विवेक नहीं हो सकता है। और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, ये कह रहे हैं वहाँ जब लंकिनी को जब गुस्सा मारे ये हनुमान जी, तब लंकिनी वहाँ कह रहे हैं कि बिनु सत्संग, क्योंकि उन्होंने शास्त्र चर्चा तो की नहीं, एक मुट्ठी मारा उन्होंने जोर से और उनको होश आ गया, विवेक जग गया उनको, वो मार खा करके, हाँ ना। तो कहते बिनु सत्संग विवेक नहीं हो सकता है। तो अगर धन है, पद है, प्रतिष्ठा, किसी भी चीज, किसी भी निमित्त से बिना प्रभु की कृपा सत्संग भी नहीं मिल सकता है। अब नहीं तो देखिए तुलसीदास जी को घरवाली ने एक ही बार गाली दिया, वो घर छोड़ के भागे वो, तो आदमी यहाँ जीवन भर लड़ रहा, गाली खा रहा, फिर भी नहीं छोड़ रहा है ना। वो एक ही बार उन्होंने गाली खाए और जग गया विवेक, ठीक है ना। नहीं ಪಾತ್ರ और ಅಪಾತ್ರ है ನೋಡಿ ನಾವೀಗ ಗದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೂತ್ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ರು ಹೊರಟ್ವಿ. ಬಾಕಪ್ಪ. ದೇವ್ರೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ? वो देखिए ऐसे फूल होता है उसका, रेड फुल ऐसे फूल होता है, पूरा भर जाता। ಹೊರಟ್ವಿ. ಅದೇ ಬೇರೆ ಗದ್ದೆ ಹೊಸ ರೂಟ್ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಈ ನೆಲ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಇದಾಗಿದೆ, ಒಣಗೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ. ये जो है रमलिंग, ये हाईवे में जनरली हर 5 किलोमीटर में लगभग ये देते हैं, ताकि अगर ड्राइवर को कोई झपकी आ रही, कहीं इधर उधर अटेंशन है, हाँ उसको अलर्ट करने के लिए, एक्सीडेंट से बचाने के लिए। अच्छा 5-5 किलोमीटर में होता है। हाँ लगभग होगा ये, चाहे टर्निंग हो चाहे ना हो। खाली NH में, हाँ ये रमलिंग लोग।
हनुमान जी फेस इतना ला नहीं पाए ना। जब वही रावण ने हाँ राम लक्ष्मण को जब नंदी बनाए थे, अपहरण करके जब पाताल लोग ले गए ना, तो वही रावण ने वर मांगा था आदि समय में ब्रह्मा जी से ना, कि मेरे जो उनका 5 द्वार था महल में प्रवेश के लिए, 5 दीपक एक साथ जो बुझाएगा बस मैं उसी के हाथ से मरूंगा। हाँ। तो वो 5 दीपक जब उनको लेने के लिए हनुमान जी जब गए, तब उन्होंने वो 5 दीपक बुझाने के लिए पंचमुख वाला अवतार लिए थे। फिर ನೋಡಿ ನಾವೀಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಮ್ಮ ಹರಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಟೀ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಬಂದ್ವಿ.